Assalamu alaikum dear students. Today I'm going to discuss Long Walk to Freedom, and this extract has been taken from Nelson Mandela's autobiography. जो इंसान अपने बारे में खुद ही अपनी कहानी लिखता है, ठीक है. And it's about apartheid, means discrimination or separation of people. किसी को कास्ट, कलर, लुक्स के बारे में कमतरी समझना, उस सब को हम अपार्थाइड कहते हैं. यानी किसी भी इंसान को आप कमतरी का एहसास दिलाते हो, उसको ऐसा आप मतलब महसूस होने देते हो, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करते हो, सरकास्टिक आप बनते हो, उसको नीचा दिखाते हो. अब ये तो बहुत पुरानी बात है, जो ही नेल्सन मंडेला वर्क कर रहा था अपनी कंट्री को, साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए, जो कि हमेशा वाइट पीपल के अंडर थी, और जो वहाँ के ब्लैक पीपल थे उनको हमेशा कमतर समझा जाता था. ठीक है. सो ये तो तब की बात है, लेकिन अभी भी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ये सब अभी भी होता है. These evils, these social evils are still prevailing in our society. Okay. Apartheid is the discrimination, separation of people on the basis of race, caste, and color. Apartheid was legalized by the white people and used as a tool of colonial imperialism. This extract has been taken from Nelson Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom. He talks about freedom and oppression. Mandela calls apartheid an extraordinary human disaster and freedom as a glorious human achievement. In this lesson, he talks about the system of government, the strength of courage, the power of love, and the shallowness of hatred. He puts forth his views about the oppressor and oppression. Freedom is seminal to human dignity. Oppression is a great tormentor that disseminates the identity and dignity of races. He thinks that oppressor too must be liberalized of his hatred. Mandela provides thought-provoking insight into political and social emancipation. He extensively talks about glory of freedom and its role in emancipating mankind. सो अपार्थाइड क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट करना, सेपरेट करना दो तबके के लोगों को, चाहे ऑन द बेस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग. ठीक है. जहाँ पर आप दूसरे लोगों को, जो आप जिनके लुक्स अच्छे नहीं होते हैं या कोई भी कमी होती है, आप उनको कम तरीका एहसास दिलाते हो. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. ठीक है. पहला है tormentor. Tormentor is a person. Torment means suffering. Tormentor means a person who makes you suffer. ठीक है. Dignity आपको पता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है. And discriminates means kills. कोई इंसान आपको इतना सफ़र करवाता है, या कोई इंसान इतना बड़ा ऑप्रेसर होता है कि आपकी डिग्निटी और आइडेंटिटी दोनों ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. तो मंडेला यहाँ पर एक अच्छी बात बोलता है. अपार्थाइड क्या है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर है. ठीक है. और अगर हम देखा जाए, फ्रीडम, आज़ादी क्या है? ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है. ठीक है. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. Dawn means first light of the morning. Besieged means
सराउंडेड बाय, क्लोजली सराउंडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला की यह ऑटोबायोग्राफी है। तो नेल्सन मंडेला खुद ही कहते हैं कि 10 मई की तारीख थी, सुबह जो फर्स्ट लाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थी और आसमान क्लियर था, और कुछ दिनों से मेरे जो इर्द गिर्द लोग थे वो बहुत ही हाई ऑफिशियल्स थे, हाई रैंक ऑफिशियल्स थे, और वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स थे, जो इस और इनाग्रेशन मतलब ये अब क्या बन रहा था, बहुत बड़ा लीडर बन रहा था। अब इसके अंडर पूरी साउथ अफ्रीका थी। ये जो साउथ अफ्रीका का ये ओथ लेने वाला था वो कहाँ पर लेने वाला था? सैंडस्टोन, आपको पता है एक स्टोन का नाम है। एम्फीथिएटर मीन्स एक ऐसी बिल्डिंग जो ओल शेप में होती है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत डिकेड्स से, 1 डिकेड इज़ इक्वालेंट टू 10 ईयर्स, तो बहुत डिकेड्स से, बहुत सालों से वहाँ पर जो सीट थी वो किसके अंडर थी? जो वाइट पीपल होते थे। जो भी लीडर बनता था वो वाइट पीपल में से ही कोई बनता था। पहली बार वहाँ पर रेनबो कलर्स, एक खुशी थी क्योंकि अब वहाँ पर डेमोक्रेसी थी। अब वाइट पीपल या एक एक तबके के हिसाब से नहीं चलना था। अब वहाँ पर इक्वालिटी थी, राइट्स थे सबके लिए, चाहे वो वाइट में से कोई हो या ब्लैक पीपल में से कोई हो, ठीक है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter's nanny. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. कहते हैं नेल्सन मंडेला की उस प्यारी ऑटम की मॉर्निंग मेरे साथ, accompanied means go somewhere with, ये किसके साथ गया था ओथ लेने? अपनी बेटी के साथ। पोडियम पे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने ओथ ली, ठीक है, शपथ ली। उसके बाद जो थापको मिपकी था उसने ली सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट है वो खुद ही बनेंगे। और इन्होंने वादा किया, लोगों से प्लेज ली, ओथ लिया, एक शपथ ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और अपने आप को कंट्री के सुपुर्द करेंगे। मींस अपना जो सारा वक्त है वो कंट्री के लिए वो काम करेंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने अपनी स्पीच दी, जो वहाँ पर जमा हुए गेस्ट थे और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपनी स्पीच रखी। Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आज जो मैं आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ, कन्फर्म मीन्स ग्रांट, और जो हमें ग्लोरी मिली है और जो हमें ये नई नई लिबर्टी मिली है, ये और हमें छुटकारा मिला है किससे? जो यहाँ पर ह्यूमन डिज़ास्टर था। ह्यूमन डिज़ास्टर मीन्स जो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी। अब हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी है कि हर ह्यूमैनिटी विल बी proud. The people of South Africa will feel
प्राउड। हम जो आउटलॉज थे, आउटलॉज वो होते हैं जो बाइकआउट करते हैं। अब इनको पाना था, कुछ हासिल करना था, फ्रीडम हासिल करनी थी, तो ये ब्लैक पीपल का नहीं मानते थे या अगेंस्ट जाते थे। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इतने टाइम से जो हम अगेंस्ट जा रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे सारी चीज़ें, किस लिए? ताकि हमें प्रिविलेज मिले, अपनी जो सॉइल पे हमें क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले, जो अभी तक नहीं मिल रहा था। और ये जो जीत है, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये जीत है जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। राइट। तो उसके बाद ऑथर कहते हैं कि आज हमें इंडिपेंडेंस यानी पॉलिटिकली हम इंडिपेंडेंट हो गए आज, और हम अपने आप की ओर शपथ लेते हैं कि ये जो बंदिशें थी, ये जो हम बाउंडेड थे, ठीक है, हम बंधे हुए थे गरीबी में, डिप्रेवेशन, किसी चीज़ से दूर थे, सफ़र कर रहे थे, जेंडर इनइक्वालिटी थी, बाकी डिस्क्रिमिनेशन थी, इससे अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है। ठीक है, अब हम इंडिपेंडेंट है। अब कभी भी इस सॉइल पे कोई भी किसी दूसरे इंसान को दबाएगा नहीं, ऑप्रेस नहीं करेगा। फाइन। अब यहाँ पर हमेशा जो सूरज है, ये कंट्री हमेशा क्या देखेगी, ग्लोरी देखेगी। ठीक है, और अब हमने साउथ अफ्रीका को फ्री किया है, यही हमारी जीत है। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ओके, a few moments later we all shifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impla jets left a smoke trail of black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. कुछ वक्त बाद ऊपर आसमान पे एक तमाशा, एक आई कैचिंग वेव था, एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले था, जहाँ पर साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जैसे ना इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में यहाँ भी होता है, ठीक है, तो वो सब क्या कर रहे थे, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे मिलिट्री की, लॉयल्टी की, किसके लिए, कि अब हमारी लैंड क्या है, डेमोक्रेटिक है, एक न्यू गवर्नमेंट को वो इस्तकबाल कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। और कुछ वक्त बाद जो वहाँ के बाकी ऑफिसर्स थे, उनको क्या पहनाया गया, डेकोरेट किया गया विद रिबन्स एंड मेडल्स, और उन्होंने मुझे सल्यूट किया। और क्या दिखाए कि वी आर लॉयल टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स आवर कंट्री। एंड फिर कहता है ऑथर, आई वॉज नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट कि अभी तो मैं यहाँ पर लीडर था, मैंने जीता था, अगर कुछ टाइम पहले जब मैं गवर्नमेंट के रूल्स को बाइकआउट कर रहा था, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ जो थी वो बाइकआउट कर रहा था, अब तब वो मुझे सल्यूट नहीं करते बल्कि अरेस्ट करते। ठीक है। फाइनली चिवरा मीन्स वी शेप्ड, जो जेट्स थे वो क्या कर रहे थे, जैसे हम अपनी रिपब्लिक में भी देखते हैं कि ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो यहाँ पर भी इन्होंने जो अफ्रीकन, नया अफ्रीका का फ्लैग था, उसके जो कलर्स थे उसका स्मोक प्रोड्यूस किया। ठीक है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems, the vision of white singing and black singing, these two, and the old anthem of the republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem,
they once despised and they would soon know the words by heart. यानी जो ब्लैक वाले एंथम गाते थे और वाइट वाले, वो सारे ये दो एंथम्स इस वक्त गाए गए। बेशक इनको वर्ड्स का मतलब नहीं पता था, बट ये पता था कि ये उन्होंने कोशिश की कि वो दिल से गाए। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as man, 80 years इसने spend किए थे इस दुनिया में, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. कहता है अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक हिस्ट्री मैंने बनाई है। फर्स्ट डिकेड जब था 20th सेंचुरी का, तब वॉर्स हुए और मेरे जन्म से पहले जो वाइट स्किन पीपल था उनने डिफरेंसेस क्रिएट की थी, किन के साथ? ब्लैक स्किन पीपल के साथ, और उनके खिलाफ वो लड़ते थे, उनको नीचा दिखाते थे, उनको कोई राइट नहीं था। ठीक है ना, अब मैंने 80 साल पूरे किए इस दुनिया में और इतने लास्ट डिकेड्स में हमने क्या फतेह हासिल की। ठीक है, अब हमारे राइट्स और फ्रीडम्स अब हमें मिले। ब्लैक पीपल को 20th सेंचुरी में स्टार्टिंग में जो जंग छिड़ी थी, जो डिफरेंसेस क्रिएट किए थे, वो लास्ट डिकेड्स में अब ख़त्म हो गए। ठीक है, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. That means कि ये दिन उनने कैसे देखा? ऐसे सैक्रिफाइस किए हैं वहाँ के लोगों ने जो इसके साथ ही लड़ रहे थे ताकि कंट्री को क्या मिले, आज़ादी मिले इन डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन से, जहाँ पर लोग जो आपसे नीचे तबके के लोग होते हैं या जहाँ पर डिफरेंसेस आप क्रिएट करते हो, दिखाते हो लोगों को कि वी आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स कि वो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा पेट्रोइटिक थे, अपने वतन से प्यार करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दैट मीन्स लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई। And Nelson Mandela on this day was missing those people, who has done a lot of sacrifices, fine, who were no more with him to see this victory. कि उनके sacrifices जो उन्होंने किए थे उन्होंने आज रंग लाया। उन sacrifices की ही वजह से आज उनको आज़ादी मिली। So for today, I am discussing only this part. Tomorrow, inshallah, I will discuss the second part because I have divided this chapter into two parts. It's almost 5 to 6 pages. Okay? Thank you and have a nice day.